So hello everybody, हमारे साथ विशाल भैया हैं. विशाल भैया is presently in Cisco, so he'll share all of his experiences related to interview, Cisco and all that. Hello भैया. हे शिवांगी. So भैया, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे इंटरव्यू प्रोसेस बताइए कि आपका कैसे इंटरव्यू हुआ, आप कैसे सिस्को में गए, हाउ वाज द स्टार्टिंग. Okay, so talking about a Cisco journey, then Cisco it was consist of around 7 to 8 rounds. That was not normally happens in campus. In campus, you find that there's only written round, and apart from technical rounds, and more, if it situation is worse, then you have GD also. But if Okay. talking about Cisco round, then it consists of various rounds because it was not Cisco regular campus. It was something different. It was Cisco CSR part where they conducted Ideathon event, and it was opportunity for all the tier 2 and tier 3 colleges where Cisco before never went. So it was a very good opportunity for uh, guys like us and you. It will also for you guys also for future. So if talking about Ideathon, then the very first round was consist of MCQs based on security and networking, and uh, things were not too difficult. It was similar pattern of GATE, that if you prepare previous year GATE question, that it will very easy for you. Then after clearing first round, around 200 students appear from our college, and then after first round, only 80 students were there, and in second round it was a communication round, like not communication. It is a video submission round where Cisco gave us some problem statements, and we have to something creativity, some ideas about that, and we have to speak in video and submit. So then after in 80 students, there were 16 students were selected for third round. In third round, there was 10, not too much questions. It is only 10 questions that was based on new technology like ML, IoT, cloud, and not deeper in that. It is only about if you are aware of these things, aware of technology, like you daily see uh, technical news, then you will obviously clear that questions also. After third round, there was around 50 students were there, and they were appear for the fourth round. It was main proper campus round that Cisco conducted in tier 1 college and the top colleges. This was consist of around 25th MCQs that was totally based on C, C++, Java, and all the subjects like that was in our curriculum that normally in campuses they ask. Also that data structure and all those things. And then after fourth round, around 20 students were finally shortlisted for the face-to-face interview. Again, the challenges was that in the face-to-face round was not in our college. It was in MET Delhi, and we were total 20 students were there, and then we faced the first round was technical round. They asked the only thing that you have mentioned in your resume, like all the whatever your technical subjects, like if you mentioned computer networking, then they only ask about what computer networking. If you mention data structure, then they ask data structure. It totally depends on you. Apart from these things, project were also there. Then after clearing first round, we would appear for second round. Second round was not difficult, but it was something like managerial round. If you how you can manage things like uh, मतलब कैसे चीज़ों को solve करते हो, and apart from that puzzles were also they given us, and these things very, for me it was very simple round. And after MR round, we were appear for HR round, and HR round के बारे में तो बोलते हैं कि like it is just a formality. If you appear in HR round, then 95% of chances that you got selected in that company. They only ask about what is your future plan, what about higher studies, how much your expected CTC, and all those things. And then after we clear all round, and after 15 or 20 days, result declared, and we were selected. Okay. And now we were here. Congratulations. So, Yeah, thank you. my second question to you is that कि everybody wants to get into the product based company. तो Yes. उनको होता है कि यार ठीक है, जो अच्छे से बिलोंग करते हैं लाइक IITs NITs, उनके पास है कि हाँ माइक्रोसॉफ्ट गूगल विजिट करती हैं, पर जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट या फिर टायर 3 कॉलेजेस, उनके यहाँ नहीं आता है सिस्को, Amazon. So how they can get into the product based company?
या ऑनेस्टली बताओ तो ओनली डिफरेंस बिटवीन टायर 1 कॉलेज एंड टायर 3 2 कॉलेज इज टायर 1 कॉलेज में कंपनीज आती है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सारी कंपनीज आती है, बट टायर 3 कॉलेजेस में नहीं आती है। बच्चे यहाँ भी मतलब बहुत मेरिटोरियस होते हैं टायर 3 कॉलेजों में। बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं जिनके रैंक्स अच्छे होते हैं, बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम या घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो रह जाते वहीं पे, बट दे हैव टैलेंट, दे कैन ऑल्सो क्लियर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, बट समहाउ नहीं मिल पाता है। बट नाउ इट इज व्हाट हैपेंड दैट सारी कंपनीज ओपन कैंपस कर रही है, लाइक धीरे धीरे उन्हें भी लग रहा है कि टैलेंट हमें टायर 3 कॉलेजों में मिल जाएगा, जो टायर 1 में हम जो पे कर रहे हैं उससे बहुत कम पे करके हम टायर 3 से भी ले सकते हैं। तो कंपनीज भी ओरिएंटेड जा रही है, ओपन कैंपस कंडक्ट कर रही है, बट द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट, यू हैव टू प्रिपेयर द थिंग्स दैट दे आस्क इन टायर 1 कॉलेज। और अगर उसकी बात करें तो लाइक एक प्रोग्रामिंग में सॉलिड अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, लाइक सी तो बनना ही चाहिए। देन कंपनीज का फेवरेट सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर तो मस्ट है, मतलब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लो डेटा स्ट्रक्चर। और नेटवर्किंग कंपनीज की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू बिलोंग्स टू सी एस देन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड 2-3 और सब्जेक्ट्स है जो कि मतलब अवेयर होना चाहिए, नॉट एक्सपर्टीज बट चीज़ें पता होना चाहिए। तो फिर कोई भी कंपनी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर यू, इफ यू हैव दीज थिंग्स then you can obviously grab that. Okay. If somebody is prepared for product-based company, as I Yeah, said, that companies are not visiting to tier 3 colleges. yeah, But I'm saying that students are prepared for the product-based company, but they can't get connected to those product-based company because of this reason that they are not visiting to their campus. So how they can get into that, like through LinkedIn, Internshala, or through any other source? yeah. Very first of all, you are talking about how they get the link or resources or references. So सारी कंपनीज के पोर्टल पे, इवन गूगल पे के भी पोर्टल पे जाओ, गूगल कैरियर्स, तो वहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज उनके होती है वो लिस्टेड होता है। एंड दे ऑल्सो मतलब पार्शियलिटी होता है कि हाँ पहले वो टायर 1 कॉलेज को प्रीफर करते हैं, बट इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ उन्हें ही प्रीफर करेंगे। इफ़ यू हैव टैलेंट, you have done a lot of things in your career, like in 3 years of college, then you will be appear, so they obviously look for that। मतलब सारी कंपनीज के पोर्टल पे होते हैं, लिंक्डइन पे भी अगर कोई रेफरेंस मिल गया गलती से, या कोई रिलेटिव्स है या सीनियर है, लाइक हम लोग भी है, मतलब इस सिस्को में आ गए, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कॉलेज से भी, जबलपुर से भी होंगे कहीं ना कहीं अच्छे जगह पे, बट हमें नहीं पता है। तो वो फिर ढूंढना पड़ेगा, अपना लिंक बढ़ाना होगा, लोगों से बात करना होगा, टीचर से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि कोई है क्या सीनियर जो कंपनीज में है, फिर ऐसे मतलब खुद से ट्राई करना होगा कि मतलब कैसे वहां तक पहुंच सके। और ज़्यादा भी नहीं जानना है, हर कंपनी के पोर्टल पे करियर ऑप्शन होता है, वहां पे जाओ, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, इवन सिस्को का भी एक टैलेंट ब्रिज आता है प्लेटफॉर्म, वहां पे तुम अपना प्रोफाइल क्रिएट करो, एंड देन जो भी अपॉर्चुनिटीज सिस्को को आएंगी वो तुम्हें ऑटोमेटिक मेल पे आ जाएगा, यू हैव जस्ट अप्लाई फॉर दैट। Okay. I also have one more question, like कि internships. As I said, NITs और IITs में जितनी अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती हैं, वैसे ही थर्ड ईयर में इंटर्नशिप्स भी आती हैं। हर एक कंपनी की इंटर्नशिप विजिट करती है कंपनी और कैंडिडेट्स को लेकर जाती है, जस्ट लाइक द कैंपस प्लेसमेंट। पर जो टायर 3 कॉलेजेस हैं या टायर 2 कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कंपनीज नहीं आती है इंटर्नशिप के लिए, तो हमको खुद ही ट्राई करना पड़ता है। सो हाउ टू how to get into the internship, like if somebody is willing to do, yeah, somebody is talented and want to do internship, how they can do that? Yeah, see again the same thing with internship also. In internship they look same thing that they look in campus. Like वो भी वहाँ पे same talent expect करते हैं. Like internship क्यों ले जाते हैं? Internship मतलब मेन एम यही होता है, बड़ी कंपनीज के इंटर्नशिप प्रोग्राम अलग होते हैं, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड के, उनका वो पूरा एक शेड्यूल फिक्स होता है कि हमें ये सिखाना है। मतलब लाइक प्रोडक्ट बेस्ड में जो इंटर्नशिप होता है वो लाइक एक ट्रेनिंग होता है, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है। वो सिर्फ ट्रेन करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, और उनका मेन एम ये होता है कि हम उन्हें फुल टाइम देंगे और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट अगर टायर 3 कॉलेजेस है और सपोज प्रोडक्ट बेस्ड में इंटर्नशिप नहीं मिल पाया, देन इट इज़ नॉट ऑल्सो अ बिग थिंग, यू कैन अप्लाई फॉर योर इन ए कंपनी इन योर लोकल सिटी, भोपाल में, इंदौर में,
इवन नागपुर बहुत सारे स्टार्टअप्स रोज स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ लोकल लेवल पे स्टार्ट करो। लाइक इन स्टार्टिंग वो पे कम करेंगे, या फिर बहुत जगह ऐसा भी होता है कि पे नहीं करेंगे, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें काम करना है। बट इफ यू यू आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, सो तुम्हें पहला एम होना चाहिए कि एक्सपीरियंस गेन करे, एंड देन जब एक्सपीरियंस वहां से गेन कर लोगे, देन ऑब्वियसली यू कैन अप्लाई फॉर एनी कंपनी। Okay. Is internship mandatory? Like if somebody has not done internship due to some reason, तो क्या उसका कुछ वेटेज है या वो मैंडेटरी पार्ट नहीं है, हम डायरेक्टली कैंपस प्लेसमेंट में स्विच कर सकते हैं? If talking about internship, then see, internship is not mandatory. The main mandatory thing is your experience, your skill. अगर तुमने प्रोजेक्ट किया है, उससे तुमने स्किल गेन किया है, then the weightage of things is same as equal to internship. जो तुम internship में सीख रहे हो, तुम घर पे बैठ के प्रोजेक्ट करके भी सीख सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड करके भी सीख सकते हो। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि इंटर्नशिप करना ही है। इफ यू हैव attended in so many hackathons, then it is also equal to an internship program. The main thing is you have to grab skills, you have to be confident and make things like show your strong part in the interview. Okay. My question is that if somebody wants to get into product-based company, so you told us like you should know very C++, Java, or maybe Python. What about data structure? Like everybody says data structure is very important, as you also said that data structure is very important, but like data structure is very difficult and very vast subject, stack, queue, for linear, binary, search, everything. So how should we start? Like when we go to the competitive coding, Codeforces या HackerEarth, HackerRank, easy और beginner level बहुत easily बनता है, but when we switch to excellent or hard level, it is very difficult. And as I'm talking about product based company like Google, Amazon and all that, they ask very difficult questions related to data structure. So how should we prepare ourselves accordingly? Okay, so again, if talking about product based companies, then there's a lot of categories in companies. I'm categorized the things in two parts, like one is software based and another one is networking based. So if talking about software based companies, then yeah, data structure is must. You have to be prepared with C. It is mandatory because you are from CS. So C is obviously you know. Then after, if talking about data structure, then if talking about a data structure is a single subject and you have 3.5 years in your college life before appearing for the campus, so you can start data structure in your first year. You have to, in first year you have basic things to learn, then after when you will be familiar with the basic concept, then you can switch to advanced. There's just stages in data structure. सो चीज़ों को करते जाओ, मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते 3 साल बहुत होते हैं, इनफ होते हैं मतलब चीज़ें सीखने के लिए। अगर डेटा स्ट्रक्चर हो जाए, देन सी हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, देन एक उप्स लैंग्वेज, मतलब बेसिक बनना चाहिए, नॉट एक्सपर्टीज। और उप्स में भी बनने लगा, लाइक इट इज योर चॉइस, लाइक C++, जावा, पाइथन, कुछ भी कर सकते हैं, एक कोई बनना चाहिए। और बेसिक जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बस अवेयर होना चाहिए कि हाँ कैसे क्या होता है। बट फिर अभी मैंने सॉफ्टवेयर की बात किया, अगर बात करें नेटवर्किंग कंपनी लाइक सिस्को, हुआवी, जूनिपर, तो इनका क्या होता है कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर इनको भी थोड़ा बहुत मतलब चाहिए होता है, नॉट इन द डीप, बट बेसिक जो होते हैं हमारे मतलब करिकुलम में एटलीस्ट उतना तो बनना चाहिए, लाइक लिंक लिस्ट में कैसे कोडिंग करते हैं, इंसर्शन डिलीशन, मतलब बेसिक चीजें बनना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर में। बट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग कंप्यूटर नेटवर्किंग पार्ट, देन यू कैन ऑल्सो क्लियर दैट। Okay. And rest of the things is the same like software, like all the fundamental subjects, see, that is same for networking also. Okay. अच्छा भैया, मतलब थोड़ा सा सिली क्वेश्चन है, बट जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एक इंटरव्यू में गई और मैंने सब कुछ क्लियर कर लिया, एचआर ने मुझे कोई एक क्वेश्चन दिया और मुझसे नहीं बना, और मैंने ऑनेस्टली बोल दिया कि हाँ नहीं, मतलब हाउ शुड वी रिस्पॉन्ड इन दैट सिचुएशन कि हाँ नहीं बन रहा है, तो इट्स वी शुड बी ऑनेस्ट, और नहीं हम बैठे हुए हैं, करे पड़े हैं, फिर कुछ नहीं, टाइम काट रहे हैं। या इट इज नॉट अबाउट सिली क्वेश्चन, मतलब मेरे साथ भी हुआ था सिस्को के इंटरव्यू में, जब मैं एमआर राउंड में था। टेक्निकल राउंड में तो सारी चीजें बन गई, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, उसमें भी कुछ कुछ नहीं बना था, ऐसा था। बट एमआर राउंड में जब मैं था,
तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, एक पजल दिया मुझे सॉल्व करने के लिए। और पजल्स में क्या मतलब कभी कभी होता है कि क्लिक करिए तो बन गया, अदरवाइज कभी कभी नहीं बनता है। और मेरे साथ सेम हुआ, मतलब जो क्वेश्चन मुझे आया वो मेरे से बन ही नहीं रहा था। मैं टाइम नहीं काट रहा था, बट 2-3 मिनट मैंने पहले अपना दिमाग लगाया। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल भी कुछ नहीं बनेगा, तो थोड़ा अपना जितना ट्राई करना था मैंने किया। फिर मैंने उनकी तरफ देखा, मतलब अभी क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कि बन नहीं रहा है, बस उनको बताओ कि मैं ट्राई कर रहा हूँ बट दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, मतलब चीजों को थोड़ा सा घुमा दो, डाइवर्ट कर दो। बट कहने फिर का उन्होंने तरीका क्या, बदलते हैं। हाँ मतलब थोड़ा पोलाइटली वे में उनको बोलो कि मैं ट्राई कर रहा हूँ बट बन नहीं रहा है, ऐसा उनको दिखाओ। दिखना चाहिए कि हाँ तुम लगे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ओके। और सेम मेरे साथ हुआ था। उन्होंने क्या, फिर आगे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, दूसरे क्वेश्चन। फिर 10-15 मिनट बाद फिर से वो सेम क्वेश्चन पे आते हैं और मेरे से वो बन नहीं रहा था। मैंने फिर से ट्राई किया, फिर से नहीं बना। बट अगेन मतलब उनसे पूछो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी अबाउट दिस। सो ओके। इससे लगता है कि हाँ यू हैव टू विलिंग अबाउट दैट। ओके, तो हम ऐसे डील अप कर सकते हैं, तो वो ज्यादा कोई हाँ मतलब, हेडेक नहीं होगा। हाँ इट इज टोटली अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू हैंडल देम। ओके। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि सारे क्वेश्चंस के आंसर देने ही है, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। मतलब एक दो क्वेश्चन नहीं भी बने तो इट्स ओके, यू हैव टू मूव ऑन एंड कि उनको बताओ कि हाँ नहीं बना बट मैं सीखना चाह रहा हूँ और कैन यू प्लीज हेल्प मी। ओके। I also have one question, like what is importance of communication skill along with that personality? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश होता है या पर्सनालिटी का मतलब सिर्फ लुक्स होता है। Can नो you please put some सिनेरियो, light on this topic? yeah, scenario is totally different. Communication means not your English and personality means not your look. Communication is totally about how you speak. सामने वाले को तुम जब तुम कुछ बोल रहे हो तो सामने वाला मतलब कैसे तुम्हें ले रहा है, तो द थिंग इज आर्टिकुलेशन, हाउ इम्प्रेस समवन। जो लिसनर है उसको तुम कैसे इम्प्रेस कर रहे हो, जो इंटरव्यूअर है वो कैसे तुम्हारी बातें सुन रहा है इंटरेस्ट के साथ। these things are communication. You have to communicating power, you have to leadership qualities, these things are your communication skills. And also if talking about personality, then it is also not your look. Yeah, look is also somewhere considered, but it is not about that look is important. But personality means it's your leadership skills, it's your how you initiate something, तो तुम में कितना पोटेंशियल है, तुम चीजों को कितना सीखना चाह रहे हो। these things are your communication skills and your personality. Okay. So communication skills play important role in campus, right? Yeah, if talking about then more than technical, it is communication that you have, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज या किसी भी कंपनी में तुम्हें ज्यादा ले जाएगा। यहाँ पे हम लोग सिस्को में भी काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग बताते हैं कि दे वर नॉट टू स्ट्रॉन्ग इन देयर टेक्निकल पार्ट, बट दे हैव एटलीस्ट देयर कम्युनिकेशन इज सो स्ट्रॉन्ग। सो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। Okay. I also have a question. It is not related to campus or interview. It is related to a college life, like when we go to first year as a fresher, और फिर सब कुछ नया होता है, हम 11th-12th को पास करके आए होते हैं, तो हमें एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ हमें फ्रीडम मिली एंड ऑल दैट। तो हमारा फर्स्ट ईयर यूजुअली कैजुअली चला जाता है, बहुत चिल आउट जाता है, और हम उसमें गलतियां भी करते हैं और कुछ अच्छी बातें भी करते हैं। तो लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट विल यू से टू योर फ्रेशर्स कि हाँ ये काम नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए? या दिस इज नॉट न्यू थिंग, मतलब ये सबके साथ होता है कि अभी अभी 12th पास किए, कॉलेज में है, चीजें नया नया लग रहा है, दोस्त लोग है, कैंटीन, फिर मतलब प्रोफेसर आए लेक्चर लिए चले गए, मतलब थोड़ा फ्रीडम होता है जो स्कूल में होता है, उससे थोड़ा बहुत तो मिलता है फ्रीडम। तो मतलब बच्चों को भी लगता है कि हाँ मतलब कितना एंजॉय कर ले, कितना क्या कर ले। और फर्स्ट ईयर मतलब ठीक है मस्ती करना, ठीक है मतलब करो, उसमें कोई नहीं रोकेगा। बट थोड़ा बहुत मतलब फर्स्ट ईयर से थोड़ा थोड़ा टाइम अगर मतलब apart from मस्ती, enjoy and all those things, you have enough time to do, मतलब थोड़ा बहुत सी कर रहे हैं, मतलब सी तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में कंप्लीट कर ही लो, और थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मतलब पूरे फर्स्ट ईयर में तुम्हें एक सी कंप्लीट करना है, और थोड़ा मतलब उससे ज्यादा करो तो डेटा स्ट्रक्चर लो। एक साल में सिर्फ 2 सब्जेक्ट बहुत कम है, मतलब तो मतलब चीजें बहुत इजीली वे में अगर पहले ईयर से स्टार्टिंग कर दिए तो बहुत इजीली जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर अच्छा नहीं गया, खराब भी गया,
तो भी बहुत टाइम है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, 2 साल बहुत होता है इंसान के लिए। तुम सेकेंड ईयर में भी चालू कर दो, हाँ, बट ये कि थोड़ा बर्डन बढ़ जाएगा, लाइक चीजों को थोड़ा तेज करना होगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि फर्स्ट ईयर चला गया तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन चालू किए, और वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, अच्छी अच्छी कंपनीज में है। तो इट्स टोटली अबाउट यू कि तुम कितना जल्दी चीजों को सीख पा रहे हो। ओके। ऑल्सो जो बच्चे होते हैं, लाइक हमको एकदम से फ्रीडम मिलती है तो हमारे पास कुछ लिबर्टीज होती हैं, हम थोड़ा फ्री होते हैं तो हम हर तरीके की गलती करते हैं, लाइक डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं। तो आप इस चीज में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बताऊंगा कि मतलब कॉलेज में आए तो सब कुछ करो, मतलब एंजॉय करो, क्रशेस बनाओ, मतलब घूमो फिरो, सब करो। बट अगेन एक जो गलती कर दी है उसको रिपीट मत करो। मतलब जो चीज कर दिया तो उससे सीख लेकर फिर आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, दूसरी गलती करो, तीसरी गलती करो, बट चीजों को रिपीट मत करो। ओके। और हाँ। जितनी गलतियां करोगे ऑब्वियसली उससे सीखोगे कुछ ना कुछ। तो वन डे यू विल बी दैट कि मतलब तुम्हारे पास अपने खुद के इतने एक्सपीरियंस होंगे कि तुम सीख लोगे कि हाँ, मुझे ये गलती नहीं करनी है। सो जितना गलती करना है करो, बट सीखते रहो उससे। I'll ask you that कि रिज्यूम कैसा होना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं? लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं इट शुड बी ऑफ 1 पेज ओनली, 2 पेज ओनली, हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए हमारे प्रोजेक्ट्स को, ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। तो एक बेसिक फॉर्मेट क्या होता है, या आपका रिज्यूम कैसे था? ओके, सो इफ टॉकिंग अबाउट रिज्यूम, देन सी मतलब कोई भी कंपनी, तुम एज्यूम करो कि तुम्हारी कंपनी है और तुम्हें हायर करना है किसी को। हम्म। तो तुम्हें रेज्यूमे मिल रहा है, एक रेज्यूमे है जिसमें एक प्रोजेक्ट मेंशन है, और वो भी मतलब सिंपल लाइक पीएचपी में जो वो ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम, टीवी मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब होते हैं। और दूसरा हम्म। रेज्यूम है जो कुछ हटके है, जिसमें 5-6 प्रोजेक्ट मेंशन है, टेक्निकल स्किल्स है। तो तुम किसको प्रीफर करोगे? मैं टेक्निकल स्किल्स ज्यादा प्रोजेक्ट वाले को रेफर करूंगी, ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली जिसने ज्यादा काम किया है तो उसको तुम प्रीफर करोगे। और हम्म। अगर 1 पेज के रिज्यूमे की बात करें तो मतलब कंपल्सरी नहीं होता कि 1 पेज का ही मतलब देना है। जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, वो काम चला लेते कि हम 1 पेज में कर रहे हैं, थोड़ा क्रिएटिव बना देते चीजों को। बट इफ यू हैव एक्सपीरियंस तो तुम चीजों को एकदम क्लैरिफाई करो, मतलब तुमने ये किया है, तुम्हारे पास ये टेक्निकल स्किल्स है, तुमने इतने प्रोजेक्ट किए, 3 किए, 5 किए, तुमने इतने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किए, तुमने ये वर्कशॉप्स अटेंड किया है। तो ये सारी चीजें मतलब मैटर करता है, ऑब्वियसली मैटर करता है। इवन करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, तुम जितना रेज्यूमे तुम्हारा होगा तो ऑब्वियसली इंटरव्यूअर इम्प्रेस होगा ही। और मैं अपनी रेज्यूमे की बात करूँ तो हाँ, मेरे पास ये सारी चीजें थी। मेरा रेज्यूमे 3 पेज का था, और मैंने सेम रेज्यूमे टीसीएस में भी ले गया और कंपनीज में भी ले गया, और सिस्को में भी मैंने वही रेज्यूमे ले गया, और हर जगह मैं सेलेक्ट हुआ। तो रेज्यूमे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या स्टाइल है, क्या फॉन्ट है, कलर, इन चीजों से बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मेन मैटर करता है कि तुमने क्या मेंशन किया है, तुम उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, तुम अपने स्ट्रॉन्ग चीजों को दिखाओ वहां पे और उसको हैंडल करो। ओके। और अगेन अगेन इन रेज्यूमे क्या से मतलब कम्युनिकेट करने का एक मीडियम होता है। लाइक तुमने इंटरव्यूअर को अपने रेज्यूमे दिया तो वो एक रेफरेंस है, बट इंटरव्यू हैंडल तुम्हें ही करना है। तो हम्म। अगेन रेज्यूमे के साथ साथ जो तुम्हारा मतलब इंट्रो होता है, लाइक किसी भी इंटरव्यू में अपियर हो तो पहला क्वेश्चन क्या होता है, एज यूजुअल सबको पता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। या। और मेरे साथ क्या हुआ, मुझे जिस इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन मिला, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैंने मन में ही बना लिया कि ये कंपनी में तो मैं प्लेस्ड हो गया, क्योंकि मैंने अपना एक इंट्रो बनाया था। एकदम सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने कि नॉट अबाउट मतलब माय नेम इज, जो भी है वो तो बताया। देन इट इज नॉट अबाउट कि मैंने कॉलेज इस कॉलेज से किया, इतने मार्क्स है। मैंने स्टार्ट किया कि मेरा प्रोफेशनल स्किल क्या है, सबसे पहले मैंने वो चीज बताया है। लाइक आई एम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर। जब जो भी हो तुम अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग स्किल को सबसे पहले बताओ, देन उसके बाद कॉलेज वाले पार्ट पे आओ। कॉलेज स्कूल ये सब भी मतलब बताना ठीक है, नहीं बताना ठीक है, वो सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि उनको भी पता है किस कॉलेज में है तो ऑब्वियसली इसी का बच्चा होगा। ऑफ कोर्स। देन उसके बाद प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में जो मतलब अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट है, तुमने प्रोजेक्ट में काम किया अच्छे से, तो प्रोजेक्ट को मेंशन करो। अदरवाइज तुम्हारे पास अगर टेक्निकल स्किल स्ट्रॉन्ग है तो उस चीज को हाईलाइट करो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको हाईलाइट करो। उसके बाद चीजों को ले जाओ। देन उसके बाद तुम्हारा जो टेक्निकल थिंग्स है, सर्टिफिकेशंस की है,
देन अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, अच्छी अच्छी हॉबीज, मतलब बहुत सारी हॉबीज होती है, जो भी तुम्हारी हॉबीज है, तो वो सारी चीजों को तुम अपने इंट्रो में मेंशन करो। लाइक प्रॉपर 2 और 3 मिनट्स का तुम जब सॉलिड इंट्रो दोगे, तो इंटरव्यूअर का सबसे पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही उसके सामने अच्छा पड़ेगा। देन ऑब्वियसली उसके भी अंदर से क्रिएट हो जाएगा कि हाँ ये मतलब बंदा थोड़ा हाई लेवल का है, तो ऑब्वियसली वो चीजें फिर उसके अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें जाने लगती है, ना कि इंटरव्यूअर के अकॉर्डिंग। मैंने भी सेम अप्लाई किया था। मैंने मेरी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी मैंने उनको पहले दिखाया, पहला इंप्रेशन अच्छा गया, फिर रादर देन वो क्रॉस क्वेश्चन करने के वो मेरे से सिर्फ एक्सपीरियंस पूछते गए कि तुमने ये किया है तो क्या किया उसमें। तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, उनको थोड़ी ना पता है क्या किया, तो तुम उसको अपने वे में बताओ। बट अगर तुम्हारा इंप्रेशन खराब किया तो उनको लगे कि हाँ इससे ये क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है। अगर तुमने अच्छे से इंट्रो को दिया है तो फिर वो सिर्फ क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, उनको लगता है कि हाँ इसको सब बनता है, सिर्फ वो तुमसे एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि तुमने क्या क्या किया है। मतलब हमारे लिए, मतलब अगर हमारे रिज्यूम स्ट्रांग है और हमने उस पे जो भी चीजें लिखी है वो सॉलिड तरीके से हमें आती है, तो हम हाँ, इजीली ग्रैब कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। या इवन अगर थर्ड ईयर तक तुम्हारा रिज्यूमे नहीं बना है, मतलब बहुत सारी चीजें नहीं है, तो तब भी बहुत टाइम होता है, तुम नए नए चीजों को लाओ, नए नए प्रोजेक्ट्स। आजकल तो ऐसा हो गया कि ऑनलाइन इतने सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो तुम चीजों को वहां से सीखो, वो स्किल डेवलप करो अपने अंदर, उस प्रोजेक्ट पे तुम काम करो, उसको मेंशन करो रिज्यूमे में। इतने हैकाथॉन्स हो रहे हैं, इतने इवेंट्स हो रहे हैं आजकल, तो टियर 3 कॉलेज, हर एक कॉलेज को सेम अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, सारी चीजों को मेंशन करो, और देन लास्ट में इंट्रो तुम्हारे ऊपर है। इंट्रो प्रॉपर सॉलिड तैयार करो और उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू बहुत इजीली जाएगा। Also, what is importance of project? Like I have seen so many students, what they do, they just go to shop and they buy project. Okay. Or on that basis, they think that they will be selected in hackathon or somewhat in any contest. So, what should be our mindset towards project? या ऐसा होता है, मतलब हमारे साथ के भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रोजेक्ट्स कहीं से उठा लिए, इवन वो कैंपस तक में प्लेस्ड है अच्छी अच्छी कंपनीज में, मतलब टीसीएस, जियो, ये सब में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बट अगेन अगर उन्होंने प्रोजेक्ट कहीं से उठा भी लिया, तो फिर मैटर करता है तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स। मैंने उन लोग को देखा है, उनका प्रोजेक्ट अच्छा नहीं था, बट उनका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना अच्छा है कि कंपनीज उनको लेगी ही लेगी। उन्होंने इस वे में अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने ऐसे सेल किया अपने आप को। बट हम बात कर रहे हैं टेक्निकल कंपनीज की, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की, तो वहां पे कभी कभी लैग कर जाएगा अगर मतलब कहीं से प्रोजेक्ट उठाए तो। और प्रोजेक्ट उठाना भी क्यों है, मतलब फर्स्ट ईयर से ही आजकल तो हैकाथॉन्स में मतलब पार्टिसिपेट करो। इट इज नॉट अबाउट कि मतलब तुम्हें टेक्निकल चीजें सीखनी है, तुम हैकाथॉन से पार्टिसिपेट कर रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, वहां पे खाने पीने को इतने सारी चीजें मिलती है, और बाई चांस मतलब अगर अदर सिटीज में हो रही है तो घूमने का भी इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तुम गोवा इवेंट सेलेक्ट करो, बैंगलोर करो, अच्छे अच्छे सिटीज में जाओ, वहां पे घूमो फिरो, मतलब दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मतलब प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, स्किल भी ऐड हो रहा है, घूमने को भी मिल रहा है, और घर से बाहर एंजॉय भी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। अच्छा भैया, अभी तक आपने कितने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है? अगर बात करें लाइक ऑफिशियली, मतलब जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए और बहुत आगे तक काम किए, तो 3 हैकाथॉन्स थे जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी किए और गए। और उसके अलावा हम लोग बहुत, मतलब फर्स्ट ईयर में थे तो तब हम लोग आइडियाज सबमिट करते थे, बट सेलेक्ट नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम हमारे फोर्थ ईयर वाले सीनियर थे, थर्ड ईयर वाले थे, उनके बहुत हाई हाई लेवल के आइडियाज होते थे। बट इससे क्या होता था कि हम लोग हार नहीं माने, अपना एक्सपीरियंस गेन करते गए। जब सेकेंड ईयर में गए तो मतलब छोटे छोटे आइडियाज मतलब सबमिट करते थे, छोटे इवेंट्स में हम लोग को काम करने को मिला। फिर जब थर्ड ईयर में आए तो कॉलेज में इवेंट हुआ था, वो अपने कॉलेज ने इवेंट कराया था, हैकाथॉन कराया था। तो उसमें हम लोगों ने अपना आइडिया सबमिट किया था, और फिर उसमें जो बाहर से ट्रेनर आए थे तो उन लोगों ने हमें अपॉर्चुनिटी भी दिया था कि मतलब रियल प्रोजेक्ट पे उनके साथ काम करने के लिए स्टार्टअप में। फिर जब थर्ड ईयर में ही थे तो जबलपुर में हैकाथॉन हुआ था, हैकफेस्ट जबलपुर। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे अपना आइडिया सबमिट किया था। वो ऑल इंडिया लेवल पे जबलपुर में हुआ था, मतलब दूसरे सिटीज से भी स्टूडेंट्स आए थे। इवन मतलब जो जिनका स्टार्टअप ऑलरेडी 8 8 10 10 साल से चल रहा है, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। और जो जजेस थे वो भी बहुत हाई लेवल के आए थे। तो वहाँ पे हम लोग क्या टोटली 2 दिन तक हम लोगों ने काम किया अपने प्रोजेक्ट पे। वहाँ पे आइडियाज को सबमिट किया,
और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला। बट द मेन टर्निंग पॉइंट जो था वो हम लोग का इसरो वाला प्रोजेक्ट था। हम लोग जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 था, उसमें आइडियाज़ सबमिट किए थे और जो आइडिया था हम लोग का वो मतलब बाय चांस इसरो का ही सिलेक्ट हो गया। और ऑब्वियस सी बात है, जब इसरो का प्रोजेक्ट तुम्हारे पास हो तो कोई कंपनी तुम्हें मतलब जाने नहीं देगी हाथ से। तो हम लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से लिया और मतलब जब प्रोजेक्ट चल रहा था तो मतलब बहुत कम टाइम था। सबसे पहले तो जो हम लोग का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो सैटेलाइट पे था और टोटली नया था हमारे पास। हम लोग तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने में 7 दिन लगे थे। हमारा आइडिया सेलेक्ट हो गया है, हमने मतलब बेसिक चीजें दिया था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, बट बहुत डेप्थ में हमें भी नहीं पता था मतलब काम कैसे करना है। जब हम लोग का आइडिया सेलेक्ट हो गया तो सिर्फ समझने में 7 दिन लगा कि हम लोग को एक्चुअली काम क्या करना है। टोटली न्यू टेक्नोलॉजी थी, पाइथन था, मशीन लर्निंग था। बट अगेन मतलब वहां पे अगर हम लोग हार मान लेते तो वहीं पे मतलब कुछ नहीं होता। बट पूरे इंडिया में सिर्फ एक प्रॉब्लम स्टेट में सिर्फ 4 लोगों को सेलेक्ट किया गया था और उसमें हम लोग थे। तो 20-25 दिन था हमारे पास, इनफ टाइम था। हम लोगों ने टीचर से कांटेक्ट किया, कुछ इसरो के कांटेक्ट किए गए थे, मतलब जो भी डाउट्स है तो उनसे पूछने के लिए हमने उनसे पूछा। फिर चीज़ों को मतलब थोड़ा टाइम अपना मतलब दिया, अपार्ट फ्रॉम कॉलेज टाइम, मतलब रात रात भर काम किया उस पर चीज़ों को, मतलब जितना पॉसिबल हो उतना हम लोगों ने किया। फिर हम लोग को अपना जो प्रोजेक्ट था वो अहमदाबाद प्रेजेंट करना था। हम लोग वहाँ पे गए, 6 लोग दोस्त थे, साथ में गए वहाँ पे, प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट किए। फिर प्रोजेक्ट जब इवेंट खत्म हुआ तो फिर उसके बाद भी हम लोग 3 दिन रहे वहाँ पे, हमें एकोमोडेशन भी वहीं पे दिया गया था इवेंट के बाद भी। फिर हम लोग पूरा अहमदाबाद घूमे, खूब एंजॉय किए, मेमोरीज क्रिएट किए। अभी जैसे लॉकडाउन में मतलब सारी चीज़ें बंद है तो अभी वही फोटोज हम लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब जो हम लोगों ने साथ में मेमोरीज क्रिएट की है। और ऐसा कोई इवेंट नहीं था जहाँ पे हम लोग कॉलेज लाइफ में, मतलब जो हम लोग 5-6 लोग का दोस्त ग्रुप था तो हम लोग हर इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। मेन एम ये नहीं होता था कि हमें प्रोजेक्ट करना है, मेन एम हमें ये होता था कि हमें घूमने जाना है, फैमिली वाले भी नहीं रोकेंगे, कॉलेज के पैसे पे जाना है और पैसे भी मिल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मेन इंजॉयमेंट का होता था। तो इंजॉयमेंट भी किए, साथ में प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किए, सीखने को मिला और रेज्यूमे में भी ऐड कर लिए। ओके, हाँ, सो भैया ये क्वेश्चन भी था मेरे अंदर, काफी क्यूरियोसिटी है कि जैसे आप एक हिंदी मीडियम स्कूल से बिलोंग करते हैं और आप बिहार के भी हैं, सो हाउ इट वाज लाइक लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ना कि आपने ऐसे स्टार्ट किया एंड नाउ यू आर इन सिस्को द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और सबको ये मिसकंसेप्शन होता है यार कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, और आपने किया है। तो आप अपनी थोड़ी सी जर्नी शेयर करिए ना कि आपने कैसे स्टार्ट किया, लाइक या फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर। या मतलब ये कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आना मतलब बहुत दिक्कत लगता है मतलब स्टूडेंट्स को। इवन कल ही या परसों मेरे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, हाउ आई प्रिपेयर फॉर दैट। और मेरे लिए भी स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट था। बट सी मतलब जो चीज़ें डिफिकल्ट है, जो तुम्हें नहीं बनता है, तो उसको सीखने में और मजा आता है। मतलब तुम एक नई चीज़ सीख रहे हो और नई स्किल डेवलप कर रहे हो। और मतलब स्टार्टिंग से बताया तो मतलब 12th तक मतलब उतना मेरे को, 10th तक मैं हिंदी में था, देन इंग्लिश में स्विच कर गया। तो थोड़ा थोड़ा मतलब इंग्लिश चीजें, मतलब बुक्स ये सब तो पता चलने लगे कि हाँ कैसे करना है। देन मतलब मेन कॉलेज से मैंने कम्युनिकेशन पे काम करना चालू किया। अगेन मतलब फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन पे क्या करे कैसे करे, मतलब बहुत सारे मतलब लगता है कि कैसे करे। तो मतलब मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ। मतलब मुझे भी उस टाइम नहीं था कि मतलब मुझे कम्युनिकेशन पे कैसे काम करना है। हम लोग को कॉलेज में मतलब फर्स्ट ईयर में इंग्लिश के भी सब्जेक्ट्स लगते थे, कम्युनिकेशन के भी लगते थे, टीचर या मैम पढ़ाने आती थी। तो जब फर्स्ट ईयर में था तो एक मैम आती थी पढ़ाने, वो मतलब मैं बहुत पहले से कम्युनिकेशन में मतलब बहुत अच्छे से पढ़ता था, मतलब टीचर से कनेक्ट हो जाता था। वो जो भी बता रहे लाइक आफ्टर क्लासेस, मतलब उनसे मैं पर्सनली बात करता था कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, मुझे मतलब कम्युनिकेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। तो मतलब टीचर कॉलेज में तो पढ़ाते ही थे, साथ में ही बोलते थे कि मतलब जब फ्री हो या फिर मैं फ्री हो तो मिलते फिर पढ़ाते कॉलेज में। इवन मैं कॉलेज में ब्रेक्स में जो आधे घंटे का ब्रेक होता था उसमें भी जाके मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं पढ़ाई करता था, उनसे कम्युनिकेट करता था, इंग्लिश में बातें करता था और इस ऐसे मतलब डेवलप करता था। बट अगेन मतलब मेरी एक दोस्त थी तो उसको भी ये सब बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब वो इनिशिएट लेती थी कि मतलब चलना है मैम के पास, और मुझे बोलती थी कि हाँ तुम भी चलो साथ में। तो मुझे मतलब जाने का मन नहीं होता था, बट फिर भी हाँ चलो उसके साथ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे। फिर मतलब फिर ऐसे मतलब सिर्फ उसके साथ टाइम बिताने के लिए मैं कम्युनिकेशन पे काम करता था। और मतलब ऐसे फर्स्ट ईयर में उनके पास था, सेकेंड ईयर में मतलब कोई ना कोई टीचर से हमेशा कांटेक्ट करते रहता था।
देन थर्ड में भी मतलब कभी कभी लगा कि हाँ मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट तो अपना एक ग्रुप भी बनाया कुछ लोगों का, अपने दोस्तों का, उन लोगों के साथ जीडीज करते थे। फिर मतलब हम लोग जब 5th सेम में थे तो मतलब हम लोग को अलग से इंस्ट्रक्टर दिया गया कि हाँ आप लोगों को अब कम्युनिकेशन पे भी काम करना है। तो मैं मतलब उस टाइम मैं देखता था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टीचर के आते सब गायब हो जाते थे। कम्युनिकेशन का टीचर क्लास में आता था और बच्चे गायब, क्लास में 5-6 बच्चे बैठते थे। मैम सिर्फ उनको पढ़ाती थी, मतलब 5-6 लोग में जीडीज कराती थी, तो मैं फिर भी उसको भी अटेंड करता था। फिर मतलब कभी कभी होता है कि कोई टीचर नहीं है या फिर कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग 5-6 लोग का दोस्तों का ग्रुप होता था, हम लोग आपस में मतलब जीडी चालू कर देते थे। जीडी नहीं मतलब कोई भी रैंडम टॉपिक है, हम लोग को आपस में इंग्लिश में बात करना है और अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करना है। तो इस टाइप से मतलब कुछ ना कुछ करते रहे और कम्युनिकेशन अपना इम्प्रूव किए। ओके। फिर मैंने ये भी सुना है मेरे सर से कि आप जब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में थे तो आप फाइनल ईयर की ट्रेनिंग में जाकर बैठ जाते थे और बैठकर स्किल्स डेवलप करते थे, तो ऐसा है ना? हाँ बहुत सही सुना है वैसे। जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मतलब उस टाइम सेम ब्रेक होता था तो सारे घर चले जाते थे, और मैं मतलब बिहार से था तो हम लोग का यह मतलब क्या कि मैं बहुत पहले से ही घर से बाहर आ गया था, तो मुझे मतलब इतना बार बार घर जाना मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब तो याद नहीं आती थी, बट अब तो बात करते ही रहते हैं फोन पे, हर दिन तो बात करते ही रहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने का मन करता था, और मतलब सीखने के अलावा मेरी दोस्त थी, क्रश था मतलब उस पे, तो मेरे को उसके साथ टाइम बिताना था। तो सेम ब्रेक में वो भी कॉलेज आती थी, मैं भी आता था, कुछ ऑब्वियसली बात है टाइम काटने के लिए कुछ नया स्टार्ट करना ही होगा। तो हम लोग साथ में नए चीज़ें सीखते थे। जो सीनियर्स के ट्रेनिंग होते थे लाइक 4th ईयर के उस टाइम कैंपस की चल रही होती है, उनके ट्रेनिंग चल रहे होते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो हम लोग साथ में मतलब मैं भी वो भी दोनों साथ में बैठते थे। ऑब्वियसली अब सीनियर्स भी मतलब उनको जब पता चलता था कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ या टीचर कोई, तो मतलब ऑब्वियसली इंप्रेशन क्रिएट होता है, और वो मतलब फर्स्ट ईयर में ही तुम्हारा एक इंप्रेशन क्रिएट हो गया। जब सेकेंड ईयर में जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे, तो और जब फोर्थ ईयर में जाओगे, जो ट्रेनिंग तुम्हें बैठना है और वो ट्रेनिंग तुमने फर्स्ट ईयर में कर रखी है, तो सोचो तुम कितना आगे हो और स्टूडेंट से। तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी किया जो फोर्थ ईयर का है, सेकेंड ईयर में भी किया, और हर साल कुछ अलग अलग ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। लाइक जैसे कभी एमएल हुआ, अगले साल जावा हुआ, अगले साल पाइथन हुआ, तो तुमने सारी चीजें कर रखी है, तो ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेंशन इन योर रिज्यूमे। और टीचर से भी कांटेक्ट बढ़ रहा है, और बहुत सारे सीनियर से भी तुम्हारे कांटेक्ट हो रहे हैं, तो फिर वो सीनियर्स ऑब्वियसली कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे, तो ये सारी चीजें वो अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बताएंगे कि तुम उनके साथ फैमिलियर रहोगे, तुम्हारी दोस्ती रहेगी उनके साथ। तो ऑब्वियसली तुम अपने क्लास वालों के साथ तो हो ही साथ तुम और भी सीनियर से हो, और भी बहुत सारे लोगों से हो, और इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाने आ रहे हैं, तो सबके साथ तुम कनेक्ट हो रहे हो। और तुमने एक और क्वेश्चन पूछा था कि वो कैसे लिंक्डइन पे या फिर हाँ, कैसे लिंक बढ़ाए, तो ये एक बहुत सही तरीका है कि तुम सीख भी रहे हो कुछ नया, तुम्हें सर्टिफिकेट भी मिल रहा है ऐड और करने के लिए, कनेक्शंस भी बन और, रहे हैं। और कनेक्शंस भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हम्म। एट लास्ट मैं आपसे यही पूछूंगी कि आप क्या ऐसा एक पंच लाइन बोलेंगे फ्रेशर्स को और अपने जूनियर्स को कि हाँ ये मैंडेटरी है, आपको फॉलो करना ही चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू द लास्ट ईयर? इट इज अबाउट मतलब टाइम यूटिलाइज कैसे करते हो, मतलब फर्स्ट ईयर में आए तो उसी मतलब कुछ भी करो बट टाइम यूटिलाइज करते जाओ। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ मतलब जो भी लगे, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स कुछ बाहर की चीजें हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, सीनियर से इंटरेक्ट करते रहो। जब सीनियर से इंटरेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। अपने टीचर्स को कांटेक्ट करो, अगर टीचर्स के कांटेक्ट में रहोगे तो कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है और टीचर डायरेक्ट तुम्हें बोलेंगे कि हाँ तुम ये करो। तो ये सारी चीजें तभी होगी जब तुम अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों से मिलोगे, जितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो अपने आप को। और बस यही चीज है कि सीनियर से इंटरेक्ट करो, टीचर से करो, लोगों से मिलो, देन यू विल गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके। बाय द वे भैया, मैंने सुना है कि आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स हैं उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पोएट्री और अदर थिंग्स भी है, तो आप कुछ उसमें के बारे में बताएंगे व्यूअर्स को? अब पोएट्रीज की बात करें तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कॉलेज में कोई भी नया नया आता है तो नया नया प्यार होता है, ये सारी चीजें अच्छी लगती है। और फिर इसी वे में मतलब चीजें वो लिखने का उस टाइम बहुत मन करता है, बट अगेन मतलब पहले टेक्निकल चीजें अपना जो तुम्हारा एम है उस पर ध्यान दो, और ये पोएट्रीज मतलब ये सब हॉबीज में रखो, जितना लिखना लिखो,
और सबको मतलब बैलेंस करके चलना चाहिए। ओके, तो तो आप अभी कोई तो मुझे शायरी याद नहीं। सुनाएंगे? बहुत बड़ी मतलब शायरी नहीं है, बस 2 लाइन की है, टाइम भी नहीं है अपने पास। तो एक जो मैंने लिखा था, मैंने कहा कि बहुत प्यार आता है तुम पर, मैंने कहा कि बहुत प्यार आता है तुम पर, उसने भी बड़े प्यार से मुस्कुरा के बोली, और तुम्हें आता ही क्या है। ओके, दैट वाज नाइस। एक चीज और, जैसे आप पोइट्रीज करते हो तो वैसे मैंने सुना आपका एक ट्रैवल का भी काफी अच्छा शौक है, तो इसमें आप कुछ बताइए, आप कहाँ कहाँ घूमे, क्या क्या एक्सप्लोर किया है अभी तक आपने? ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम, जब मैं 10th क्लास तक था, तो हम्म। मैं मतलब कहीं नहीं गया था। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में था मैं, कहीं नहीं घूमा था, कहीं एक्सप्लोर नहीं किया था। और हम्म। मतलब मम्मी मम्मी पापा जहाँ जाते थे मतलब मैं साथ में ही रहता था। तो हम्म। मतलब बेसिकली घर पे ही रहता था। बट जब 10th क्लास के बाद मेरे को हायर स्टडीज 11th 12th के लिए बाहर भेज दिया गया, तो फिर वहाँ से मेरा बेसिक जर्नी चालू हुआ। जब घर हम्म। से बाहर निकले तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब खुद से सारी चीज़ें हैंडल करना होता था। और घूमना बहुत पहले से ही मुझे पसंद था। तो अलग अलग सिटीज़ मतलब कभी कभी तो ऐसा होता था स्टार्टिंग, मतलब एग्जाम्स बहुत सारे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, इधर उधर बहुत सारी चीज़ें किया। तो अदर अदर सिटीज़ को एक्सप्लोर किया, बहुत सारे जगह घूमे। मतलब अभी टिल ना अगर बात करें तो हाफ ऑफ इंडिया घूम चुका हूँ। So Bhaiya, it was my honor having you on my channel and sharing your all the views and thoughts on this topic, interview process and campus placement. मैंने आपसे इंटरव्यू, कैंपस प्लेसमेंट के साथ साथ वो सारी चीजें भी सीखी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हैं. So it was my honor having you. Thank you so much.